everyone in this online teaching learning program. And since we have completed the syllabus for PT3, we will go for the revision and we will revise the first chapter or what the first thing for PT3 is transportation in plants and animals, and it is in biology, right? And food, as we have discussed in the previous chapter, must be carried to every cell in an organism's body. It is pretty understood to all of you, and oxygen too much must reach every cell. On the other hand, carbon dioxide and other waste must be carried away from the cells. So we are going to learn in this chapter various substances that are transported. What is the meaning of transportation? Transport, just like means of transport, that is to move one place to another. Similarly, in plants and animals, the things that is required for the body has to be taken to every cells of the body, and that which is not required, the things which is not required has to be excreted, बाहर निकलने की ज़रूरत है उल्लू, तो उसके लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, and there is a system. Fine. So we will study the ways by which an organism expels waste from its body. Fine. चलो, तो transportation, organism need food and water and oxygen for their survival, pretty clear. These substances are transported to various parts of the body. Obviously, we take in oxygen and we give out carbon dioxide. It means that oxygen is being transported to every cell of our body, whereas carbon dioxide is released. The waste that are produced by organism are removed from the body. And what are the waste products? Just we have studied in the last year. You have studied different digestive system, that how in animals like human beings, how it is wasted, excreted, and these waste are transported and collected in an area. कहाँ पर collect होता है? Do you remember? Bowel. Okay. The process of movement of substance from one location. Transportation क्या होता है? Substance का movement from one location to another. It is transportation. And if the organism is unicellular मतलब simple हो जाता है. That is simple, easy. Here simple process like diffusion. Now what do you understand by diffusion and osmosis? थोड़ा हायर क्लास में भी तुम्हें पता चलेगा, लेकिन डिफ्यूजन क्लास 6 में तुम लोग पढ़े होगे. व्हाट इज डिफ्यूजन क्लास 6 में? So you have already studied about diffusion, that when a substance mixes of its own, मतलब अगर कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है and the substance mixes, जैसे if I put a drop of ink in the glass of water, क्या होगा कि धीरे धीरे ब्लू कलर सारी जगह फैल जाएगा, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फैल जाएगा. तो दिस इज डिफ्यूज़न. तो अगर मैं कुछ ऐसा इमेज बनाती हूँ कि ऐसा इमेज बना रही हूँ, बीच में ये सेल है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि ये सेल है. तो सेल में क्या नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी, क्या हम लोग को हर सेल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है? क्या इसके कंपोनेंट्स के? अभी हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को कि डिफ्यूज़न, यहाँ पर डिफ्यूज़न कैसे होगा, है ना? तो डिफ्यूज़न ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, उसको आगे चल के तुम लोग को पता चलेगा. अब जैसे कि हम अपने घर में ये
एक मेम्ब्रेन है जो कि उसी सब्सटेंस को अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा जो इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जस्ट लाइक कि अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम लोग किसको अंदर आने देते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, मतलब फिल्टर्ड लोग ही घर के अंदर आ सकते हैं, सभी लोग नहीं आ सकते। उसी तरह से ये मेम्ब्रेन जो है क्या करता है कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है। ठीक है, तो ये है दैट ओनली अलाउज द स्पेसिफिक मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल। एंड क्या बना, अब इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना रहता है। एंड देयर आर टू थिंग्स दैट कैन फ्रीली मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, एंड दोज इंक्लूड गैसेज एंड वाटर। ठीक है, गैसेज एंड वाटर ट्रैवलिंग अक्रॉस gases and water. Okay, just like we know that what happens when a drop of ink is dropped in the, and it spreads and fades slightly. So if we see the molecules level, then ink molecules which are compact in a single drop has the chance to move around. Okay, और यहाँ पर क्या होता है, nothing no energy is required. We know that this dispersal process not require any energy. The molecule just try to move freely and take the space available there. The same story is seen when gas or water molecules travel across the membrane. Take carbon dioxide for example. अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर जो लाइफ प्रोसेस है उसको, इस सेल को ज़िंदा रहने के लिए जो लाइफ प्रोसेस ऑक्सीजन और फूड इसको ज़रूरत है, इसने लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इसमें, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ किया, तो क्या करेगा कि ये यहाँ से, और यहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, जस्ट लाइक हीट हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, हीट ट्रैवल फ्रॉम हायर टू लोअर, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वहाँ से ठंड की तरफ, यानी हाई टू लो लेवल की तरफ ट्रैवल करता है। सिमिलरली ये जो एरिया रहता है हाई टू लो लेवल पर ट्रैवल करेगा, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे ऑक्सीजन अगर यहाँ पर कम पड़ गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर इन हियर आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल, तो वहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन this diffusion. Fine. And now what is osmosis? ऑस्मोसिस इसी का ऑपोजिट है, और ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या यूज़ होता है, वाटर। हम लोग यहाँ पर कहाँ पर थे, वेयर वी वर, लाइक प्रोसेस लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। सो osmosis is when transfer of water. Okay, so when transfer of water across the semi-permeable membrane from a region where its concentration is higher, जैसे कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि रूट हेयर से कैसे जाता है, रूट हेयर में पानी कम होता है तो वो रूट से, सॉइल से वाटर लेता है और इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। ओके, सो अब इसका बस एक कंडीशन है कि थिंग्स पास फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। Let's move to the next part. Next is multicellular organism. Since we are doing the revision, we should move little faster. So multicellular organism, multicellular यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल, like fungi, amoeba, some bacterias. मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, ये मैं, दिस इज़ नॉट पेन, इट्स नॉट ईजी टू राइट, लेट मी चेक वेदर आई कैन write in a better way.
I don't think there is much option I'm having, or I'm not aware of that. So let's move to the multicellular organism. So different, हम लोग क्या है, we are multicellular organism and we जो हम लोगों में होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से काम चल जाए. सो देयर इज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट, different parts of the body perform different functions, जैसे digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, skeletal system. There are so many systems that works in sync, एक साथ मिल करके काम करते हैं and perform different functions. However, they stay connected to each part receives to required substance while the unwanted material are eliminated from the body. Simple process तो यहाँ पर होगा नहीं, as simple as that. तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस हो सकता है. तो इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर फ्रॉम द सॉइल आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पर सिर्फ ऑस्मोसिस मतलब दैट इज़ वन पार्ट, बट ये जो है रूट ले करेगा ऑस्मोसिस और ये ले जाएगा कहाँ पर, क्योंकि सिर्फ रूट ही तो नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें लीव्स होगा, ब्रांचेस होंगे, फ्रूट्स होंगे, एवरीथिंग, ऑल द पार्ट्स नीड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचना होगा ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ये देखा जाए. सिमिलरली फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट. अब अगर पानी जा रहा है रूट से तो लीव्स खाना बना रहा है. एज यू नो दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द plant. तो whatever it prepares it needs to go to the root, stem, है ना, root, stem, flower, मतलब each part of the plant it has to reach. Now what is the system of transportation in plants? Let's move थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं for today. तो क्या basically what is required for any living organism? Food, water and mineral, carbon dioxide and oxygen that get transported, क्योंकि obviously plant है तो it will require carbon dioxide to make to prepare its food. अब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पानी का एक चैनल अलग है, फूड का चैनल अलग है, आने का रास्ता अलग है, जाने जैसे हमारा रोड है ना, 2 वे होता है कि एक तरफ से जा सकते हैं, वहाँ से आना नहीं है. फ्लाईओवर्स वगैरह में एक तरफ जाना है तो सिर्फ एक साइड ही, 1 वे जो रास्ता है. उसी तरह से यहाँ पर भी एक सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, दैट इज़ कि प्रिपेयर्ड. अब यहाँ पर देख लीजिए, प्लीज़ सी इट, यू ऑलरेडी नो इट वेयर सिंस वी आर डूइंग द रिवीजन. तो फूड क्या है, वाटर, फूड, वाटर एंड मिनरल किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीव्स सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर एंड मिनरल्स क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम कहाँ से, ये वाटर एंड मिनरल्स इज इन द सॉइल एंड इट हैज़ टू किसके रूट्स के थ्रू जाएगा, किस अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, फ्रॉम द एटमोसफेयर, एब्जॉर्ब्ड बाय, you already know since standard 5 you are studying about photosynthesis, है ना. तो leaves do photosynthesis to prepare food. तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम where the plant is getting from the atmosphere, whereas oxygen is also required for the plant for respiration, है ना. तो और वो भी कहाँ से मिल रहा है, it is in the atmosphere and absorbed by all respiration के लिए. यहाँ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. ओके, let's see what is there in the next part, transport of water and minerals. Such a lovely diagram, and this diagram you have to practice this, the part of root sowing, root hairs, root cell, root hair, एयर स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल. क्यों ज़रूरत है भाई सॉइल पार्टिकल के बीच में जगह रहना. सो लेट्स सी इट. प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वेरी ऑब्वियस. दिस इज यूजुअली डन थ्रू द रूट्स, सिंपल, वेल अंडरस्टूड.
रूट्स ऑल्सो हैव रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या होता है कि अगर तुम लोगों ने कभी देखा है, जैसे कि गाजर या गाजर को ले लो, कैरेट। कैरेट कैरेट इज़ रूट, है ना। मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर बनाती हूँ, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा सही रहेगा। ओके। तो कैरेट रूट है। अब कभी देखे होगे कभी क्या, गाजर का अब तो मौसम आ रहा है, दिस इज़ द सीज़न ऑफ कैरेट एंड ऑल द वेजिटेबल्स। तो वहाँ के उसमें जो नोट्स बहुत सारे हेयर्स निकले रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे धागे टाइप से निकले रहते हैं। दैट इज़ रूट हेयर। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रूट हेयर? रूट हेयर क्या करता है ना कि थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ओके, तो दैट the root hair that increases the surface area for the absorption of water and minerals. तो अब क्या होता है, वाटर एंड मिनरल मिल गया, अब वाटर एंड मिनरल कहाँ जाएगा? सो वाटर एंड मिनरल अगर बना है, फूड बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है इंग्रेडिएंट्स की। कोई भी रेसिपी बनता है तो उसका डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जब फूड प्लांट खाना पका रहा है तो उसके लिए भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो दिस हैज़ टू, वो इंग्रेडिएंट को अपने अपने जगह पर पहुंचना ज़रूरी है ना। तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द नेटवर्क of tubes called xylem. Means xylem goes is the channel, वो रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या पहुंचाता है? वाटर एंड मिनरल। लुक, माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, सो प्लीज़ सुनो ध्यान से। यू मे कंपेयर दिस टू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। ओके, अब हमारे घर में जो पाइप्स आ रहे हैं, तो हमारे घर से तो पाइप्स नहीं निकल रहे हैं कि दोबारा टंकी में चला जाए। क्या हो रहा है, हमारे घर में जो पाइप आ रहा है, द अपार्टमेंट, इफ़ यू आर लिविंग द अपार्टमेंट, देयर इज़ वन टैंक अप ऑन द रूफ, और वो क्या करता है कि सारे फ्लैट्स में पानी का सप्लाई करता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो वो सिर्फ पानी के सप्लाई का चैनल है, वो वहाँ से और कुछ नहीं होता है। तो सिमिलरली जाइलम इज़ a channel to transport water and mineral to the other parts of the plant. Simple, एकदम याद कर लो। xylem क्या is a channel, is a system, a tube like structure which transports क्या चीज़? only water and mineral to the different parts of the plant. Now अब ये तो पानी तो चला गया, लेकिन अब फूड, जो फैक्ट्री लीव्स ने फूड बनाया, वो तो अब रूट्स को भी जाना है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भी जाना है। तो उसके लिए क्या है सिस्टम? उसके लिए सिस्टम है फोलेम नेटवर्क, सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। जाइलम का क्या काम है? जाइलम का, जाइलम रूट्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फोलेम का क्या काम है? फोलेम इज द चैनल, सेम थिंग है, लेकिन इसका क्या काम है? लीव्स में जो फूड बना, दैट हैज़ टू बी सेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिंपल, xylem, phloem, xylem from the roots, phloem from the leaves। कहाँ जाना है? अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलो, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और हम लोग सोच रहे हैं कि आज का इतना ही रखा जाए, सो दैट वी कैन कंप्लीट, वी विल रिवाइज इन द नेक्स्ट।
लेट्स सी व्हाट इज देयर। 10 मेकअप, हाँ ये चीज़ बिल्कुल याद कर लो, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बस इसको इतना सा याद करोगे तो पूरा आंसर याद हो जाएगा। जाइलम एंड फोलम अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट शोइंग जाइलम एंड फोलन नेटवर्क, कि ये जाइलम है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, एंड ये सारे जगह फोलन रूट्स की तरफ भी जा रहा है। अब हम लोग देखें व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट, एंड आई होप दैट यू आर डूइंग द रिविज़न, एंड एक बार करके देखना। इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and mineral. And now transpiration. Transpiration you have studied in standard 5 also, ki when the leaves what the excess of water is released through the leaves in the environment, then it is transportation. क्या होता है? Evaporation of water molecules in the form of water vapor from the plant surface, especially from the stomata of the leaves. I don't think that you need to know what stomata is. So stomata is the tiny pores which is required, which is used for exchange of gases. You may wonder why a plant loses water. क्या ज़रूरत है भाई इसको कि plant lose करे water? क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो it will die. तो जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट हैज़ टू बी रिलीज, जैसे कि एक्सक्रीशन होता है, जो हमारे फूड हमारा अब्जॉर्ब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड। सिमिलरली जो पानी, जितना पानी हम प्लांट को चाहिए, इट इज़ यूज्ड एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। Okay, so while most of the minerals are used, water is not fully used up. In this, it is this excess unused water that needs to be evaporated out. मैं थोड़ा पेंसिल का साइज़ थोड़ा सा और पतला कर सकती तो ठीक था, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी ऑप्शन, नेवर माइंड। सो ट्रांसपिरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट, इट क्रिएट सक्शन पुल। अब सक्शन पुल क्या होता है? सक्शन पुल, कभी स्ट्रॉ से नारियल पानी पिए हो या फिर फ्रूटी पिए हो, व्हाट डू यू सक इट, तो क्या होता है? वो पुल बनता है और तुम्हारे मुंह में पानी या जूस जो भी पी रहे हो वो आता है, तो सक्शन पुल बनाता है। ट्रांसपिरेशन इज बेनिफिशियल प्लांट, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ से वाटर लूज कर गया तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा पानी है तो ये इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल, और इसके कारण यहाँ से वाटर मूव करता है। इसके कारण ही, इस सक्शन पुल के ही कारण, अब तुम सोचोगे कि रूट्स तो यहाँ पर है, पेड़ के नीचे में यहाँ पर है, लेकिन पेड़ जब इतना बड़ा होता है तो पूरा ऊपर तक कैसे पानी, हर पत्ता हरा कैसे होता है, हर पत्ते के पास पानी पहुँचनी है तो पानी कैसे पहुँचती है? बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पुल। Okay, so it also helps to it also helps to lower the plant's body temperature in summer. It may be called a necessary evil. अब why it is called a necessary evil? So transpiration is why it is called necessary evil. Necessary evil because it results in water deficient. Transpiration results in water deficit, कमी हो जाती है पानी की, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है इन द एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, पानी की कमी होगी, विच कॉजेज इंजरी टू द प्लांट। ओके, एंड रैपिड अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो जो मिड डे लीफ वाटर डेफिसिट होता है, जो टेम्प्रेरी पत्ते गिरने लगते हैं, वो सब प्रॉब्लम होता है। इसके कारण इसको नेसेसरी इवल बोला जाता है। हाँ, एंड डू नॉट कन्फ्यूज ट्रांसपिरेशन विद द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट। ये वेस्ट एक तरह से नहीं है, क्योंकि पानी को हम लोग वेस्ट नहीं बोल सकते। पानी, दिस इज़ नॉट, डू नॉट कन्फ्यूज ट्रांसपिरेशन विद द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट। मतलब प्लांट को ज़रूरत है, लेकिन इसको हम लोग वेस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अ सिंगल मेज प्लांट loses about 245 liters of water through transpiration in one growing season.
एक सीज़न में ये इतना सारा पानी वाटर, सिर्फ एक प्लांट, इमेजिन एक सीज़न में एक मेज़ प्लांट, मक्के का प्लांट, इट इट जो ट्रांसपिरेशन है वो 245 लीटर्स, इमेजिन कितना ज़्यादा पानी वो ट्रांसपिरेट करता है। तो चलो देखें और जल्दी फटाफट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन अब हमारा जो हम लोग हैं बेसिकली हायर एनिमल्स, मतलब हायर एनिमल्स मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, क्या है, डाइजेस्टेड फूड को कहाँ जाना, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ऑक्सीजन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीज़ का होगा, डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीट एंड वेस्ट को बाहर निकालने का काम। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में कैसे होता है, लेट्स सी। अब देख लीजिए ये सारा चीज़ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हार्ट, blood vessels and blood. Okay, learn this diagram and different parts. चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट, अरे हार्ट का तो पूरा इन स्टैंडर्ड 6 ज़रूर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा हार्ट का डायग्राम, है ना। हार्ट का डायग्राम कैसे होता है भाई, कहाँ से लोअर कितने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, दैट यू नो, दैट इज़ मस्कुलर वॉल रहता है जिसको सेप्टम कहते हैं, अपर आर्ट्रियम, लोअर वेंट्रिकल्स। तो ये सब है। व्हेन द यू नो दैट, प्लीज़ रिवाइज इट। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, जो कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ टू फ्लो to all parts of the body, whereas deoxygenated blood has to be removed from the body। तो क्या उसका एक पूरा सिस्टम है। तो दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट क्या, दैट इज़ द यू नो। चलो, फुल ब्लड वेसल्स इन योर, देख व्हाट हैपेंड। ओके, हाँ, blood vessels in your body were to be arranged along a straight line would be almost how many kilometer? This is 1 lakh kilometer. You know, if all the blood vessels in your body were to be arranged in straight line, all the blood vessels means veins, arteries and capillaries, उसको अगर सारे को एक लाइन से जोड़ दिया जाए, एक लाइन से, then 1 lakh kilometer, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इट्स वेरी लॉन्ग। फ्लूइड क्या होता है, लेट्स मूव, इट्स नॉट वर्किंग और व्हाट, हाँ इट्स वर्किंग। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड। ओके, सो क्या क्या है इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ना, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, दिस आर द components of blood। चलो भाई, रिवाइज, दीज आर इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, ये सारे चीज़ में 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में। सो प्लीज़ पे अटेंशन, ये सब चीज़ को छोड़ना नहीं है, रिवाइज करना है। मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्लड, पूरा फुल क्वेश्चन है, एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है, एक ये वाला सारा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू इट। हार्ट बीट एंड पल्स रेट है ना, सिस्टोल जो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं, क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट, दैट इज सिस्टोल, एंड इफ इट इज रिलैक्सिंग देन इट इज डायस्टोल। ओके, गो थ्रू इट। 80 and 62 अपना हार्ट बीट नापो भाई, मेजर योर हार्ट बीट, एंड दिस इज़ द पल्स मीटर। ओके, क्लास में रहते तो थोड़ा बहुत गेम हो ही जाता। एंड दिस इज़ इंग्लिश, ये वाला डू यू नो वाला पोर्शन एक बार प्लीज़ पढ़ लेना, एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो उसके लिए पूरा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी एंड
ureter, urinary bladder and urethra. This is important diagram. Practice this diagram. Excretory system. Okay, excretory system has to practice this diagram. Fine. Now lungs, skin, ये सारा क्या मतलब these are excretory system. Okay, kidney and this lungs क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब वही करता है. स्किन क्या करता है, स्वेटिंग करता है. स्किन सप्लाइड with large number of blood capillaries and sweat glands. When there is rise in temperature, sweat glands, गर्मियों में बहुत पसीना आता है, वो उसका बहुत सारा implication है कि it helps in to keep our body cool.